So hello and welcome to Speak Up Q&A. Thank you so much for connecting. Let's get going as far as these two movies are concerned. What is your opinion? What do you think about the movies? Because these were highly anticipated movies. They both were expected to come and create a flutter on the box office, create a hangama on the box office. But the fact is that the performance of the two movies, which is रक्षा बंधन एंड लाल सिंह चड्ढा इज फाउंड वांटिंग। ये फिल्में लोग नहीं देख रहे हैं, थिएटर्स में फिल्में नहीं चल रही हैं। फिल्म दोनों की दोनों फिल्में वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पा रही हैं जो इनसे एक्सपेक्टेड था, और नतीजा इनका कलेक्शन बहुत बुरे हाल में है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द link. I had already also shared the link earlier during the point time when I was prompting the show. So Manny is connected, so we'll start with Manny. Let her video come. Yes, Manny is there after a long time. So let's start with Manny. Till then, others can also join in. And the question is very simple. What do you think? Why is Lal Singh Chadha and Raksha Bandhan not working and meeting the fate that they are actually meeting? Yes, let's start with Manny Aliwal Dukar. Yes, Manny, please go ahead. After a long Yes, sir. Good evening. Good evening. Yes, Manny, please go ahead. Yes, sir. So I think, I always go back to the previous discussions we've had over the last 1.5 year, 2 years, where I think, a lot of people spoke about how, boycott Bollywood was so important. And that time, I think people were mostly focusing on the legal justice of things. And then, of course, we started talking about law of karma, poetic justice. And that is exactly what is happening, whether it is in politics or whether it is in Bollywood. So, it's Sushant Singh Rajput's case is an example of how when man denies justice, God prevails justice. So when the authorities, when they are denying justice to Sushant, God is giving justice to Sushant. And I think it's very important to understand that. And I remember we used to have these discussions, and where we used to have heated discussions about how Bollywood boycott is so important. And I remember I was saying that if 2 years will pass, then things will start pinching them. And I'm very glad to say that it's happening. Despite all the discussions we've had in the past that this movie is a hit or that movie is a hit, the bottom line is none of the I will tell Bollywood you, movies Manny. are a hit. I will not just. I want to add to that. This first 2 years is just a trailer. Yes. The disaster of these two movies will change the course of this industry. अभी तो इनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, ये फिल्में फिर भी बना रहे हैं। अब आप वेट कीजिए, बॉलीवुड का वो दौर आने वाला है. You have not seen the kind of scenario where Bollywood is not being making films. You will see when Bollywood producers will surrender. Yes. I told you what Anurag Kashyap said. Yes. A lot of people may feel that we were talking about Anurag Kashyap. No, we are talking about the fact that producers are refusing to put money on these people. So एक दौर वैसा आएगा जहां पर लोग पैसा ही नहीं लगाएंगे, इनकी फिल्में ही नहीं बनेंगी. अभी Yes. तो फिल्में फ्लॉप हो रही हैं. आप वो देखिएगा, जब इनकी फिल्में नहीं बनेंगी आपको पता चलेगा कि कोई एक बड़ी फिल्म आ रही है. क्यों? क्योंकि 5 करोड़ में डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, उनको ओटीटी पे रिलीज करेंगे और उसको बेचकर खुश हो जाएंगे. दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू रन. दे विल लार्जली फोकस ऑन ओटीटी. ये फिल्में बड़ी बजट फिल्म आएंगी, इसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं. Just go ahead. Yes, sir. So this is exactly what we wanted. I think as a public, if you ask me personally, I can't speak for everybody. This is exactly what I wanted. That 2 years down the line, when you don't have any hit movies, slowly, because this whole thing is a nexus. And when there is no extra money to launder around, you cannot put pressure on people like Sushant Singh Rajput, to kind of do dirty work. Whether it is drugs related, whether it is, money laundering, whether it is all these activities against which Sushant was. And this is why he lost his life, according to me, because he didn't want to be part of the gang. Now imagine Aamir Khan is known for not coming on interviews, on film, on awards,
or even with in Coffee with Karan for that matter. And this time he came specially because Coffee with Karan now has become more of a film promotion show rather than, you know, interviews. No. मुझे तो लगता है मैंने कॉफी विद करण इज अ स्लीजी शो. इट्स नॉट इवन प्रमोशन, कुछ नहीं है. इट्स अ show which should be banned according to me. IME ministry should look at it very seriously. It is not about moral policing that I'm talking about. I'm not talking about moral policing. I'm not saying that we should morally decide what should be the content. No, I'm saying you cannot have every show talking only sleaze. There are different ways of talking. The show has to have a basic character. The basic character of Coffee with Karan is sleaze. So whatever it is that these people are trying to, you know, continuously come and promote everywhere. And it's not just that these two movies are going to define how the course of Bollywood is going to change. It's the number of movies that have flopped over the last 2 years. And that Anurag Kashyap finally had to say that, you know what have we come to, where Sushant Singh Rajput trends every day on Twitter, and Bollywood movies are being boycotted. Finally, somebody from the industry has accepted it. That, you know, Sushant Singh Rajput's death is much more serious than they ever thought. That's what I said in my last video. That it's not a small thing. You're admitting the fact that, you know, no one is willing to give us money. Everywhere Sushant Singh Rajput is there, and we are nowhere. So, you know, all this radio shows and all, may also, you know, while I'm traveling and all, I hear these radio jockeys saying कि Bollywood में अच्छे scripts नहीं हैं, तभी movies flop हो रही हैं. You know, they want to blame anything. But the reason that why Bollywood has come to its knees because of Sushant Singh Rajput, because they did not show any support from A to Z, whether you are a nepo kid, whether you are not a nepo kid, whether you are an art actor or you are just a star, it doesn't matter. None of them stood for Sushant Singh Rajput. Till now, they don't accept it, and this will continue to happen. Third year of Bollywood is going to now start defining that these actors and all को तो पैसे मिल जाते हैं, इन्होंने इतने रेंट वगैरह, I'm sure they are earning, you know, basic income, but जितने उनको पैसे पहले मिलते थे, unlimited amount of money. And that's why Kareena Kapoor had the guts to say, अगर Bollywood आपको movie नहीं देखनी तो मत देखो, because they never ever thought in their dreams that public will actually end up doing this. So finally they are realizing. And this attitude और arrogance भी है ना सर, ये भी खत्म हो जाएगा. आप next 2 years में देखना क्या होने वाला है. Next 2 years में ये जो stars हैं, ये जो attitude वगैरह है ना, सब बदल जाएगा. मैंने तो कहा ना next 2 years में आपको फिल्में ही नजर, हाँ, फिल्में नजर नहीं आने वाली. OTT platform की तरफ जाएंगे ये. They'll probably do things where, you know, they are not forgotten by the public. They'll do ads or do small films so that public remembers ये कौन है, ये कौन है. Because if people, what is Bollywood today? The reason why they were so up high is because people made them up so high. Now they've realized that the people are not supporting them anymore. So they will try and, you know, entice people, and people are not interested in them anymore. एक आदत होती है जो वो habit आपकी movie देखने की बंद हो जाएगी, because they put us off so badly. And I'm so glad that public has quietly, even if they don't come and talk anywhere or shows are not talking about it, but they are quietly told them, you don't give justice to Sushant Singh Rajput, there is going to be no movie watching as far as the public is concerned. That is justice for Sushant. By mistake, I removed her from the studio. So please connect Madhu. Waiting for US. Payal, go ahead. Payal बोलिए. पायल आवाज आ रही है? पायल आवाज नहीं आ रही आपकी. 1 second, पायल 1 second. Yes, बोलिए पायल. म्यूट था मेरा. हाँ सर, हर अच्छी चीजों को एडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है. तो सुनाई दे रहा है? हाँ बोल, आवाज आ रही. ओके. तो जैसे कि आपके शो को भी, हाँ, जैसे आपके शो के कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग क्यों नहीं देखते हैं. तो शायद बॉलीवुड के जो गलत चेहरे हैं ना, तो इसको भी हम लोगों को समझने में बहुत टाइम लगा है, बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगा है. और बिकॉज ऑफ, क्योंकि मुझे मानना यही है
कि पूरी मतलब देश में हमारे एसेसरियंस नहीं है, तो चंद है। लेकिन सुशांत की वजह से बॉलीवुड के जो नेगेटिव जो कैरेक्टर हैं, बॉलीवुड के जो असली चेहरा है, वो सामने आ गया है बिकॉज ऑफ सुशांत। तो ये जो बॉयकॉट है ना, ये हम लोग तो किए थे, लेकिन बिकॉज ऑफ बॉलीवुड के इतने गंदे चेहरे हैं, ड्रग्स एंड ऑल सब कुछ सामने आ गया है, इसीलिए इन जनरल सब पब्लिक चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को बंद होना चाहिए और एक साफ सुथरा इंडस्ट्री होना चाहिए। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर सुशांत ही है, चाहे वो माने या ना माने। Okay. और बॉलीवुड के अगर तो ये लोग तो कभी अपने एरोगेंस से बाहर आए नहीं, क्योंकि ये लोग तो समझते हैं ना कि डायमंड्स में ही पड़े बड़े हैं, इन लोगों की यही फितरत है। तो जैसे कि उन लोगों को जमीन पर पैर तो कभी पड़ते ही नहीं है ना उन लोगों के। तो जमीन पर पैर मतलब रखने के लिए भी उन लोगों को टाइम चाहिए। उन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ये लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन एंड ऑल दैट मूवीज अगर फ्लॉप के बाद फ्लॉप आए, तब शायद उन लोगों को समझ में आए कि जमीन क्या होता है, धरती क्या होती है, और वहां पर पैर रखकर जो आम इंसान चलते हैं, जो उनके सर के ऊपर चढ़ के हम लोग इतने साल से इंडस्ट्री को राज किए हैं, हमारे पैसे से ही अपना पैसा बनाकर करोड़ों अरबों रुपए कमाकर ड्रग्स एंड ऑल दैट सब कुछ किए हैं, वो अगर उन लोगों को समझ में आएगा कि एक एक पहले तो मूवीज टिकट आते थे 20, 30, 40, 50, अब वो 200 से 500 से पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया है मल्टीप्लेक्स आने की वजह से। तो इंसान क्या करता, अपने एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। तो एंटरटेनमेंट के लिए हम गलत चीजों को क्यों अडॉप्ट करें? अगर अपने बच्चों को कुछ अच्छा चीजें नहीं दिखा सकते हैं, को अच्छे एंटरटेनमेंट नहीं कर जा सकते हैं, तो अपने फ्यूचर जनरेशन को ये गलत और ये सब बुरी चीजें दिखा कर क्या फायदा है? क्योंकि बॉलीवुड को साफ सुथरा सही चीजें दिखाना तो भूल ही गया है। पुराने जमाने में अच्छे मूवीज बनते हैं, स्टोरीज बनते थे। आजकल के जमाने में कहाँ अच्छी मूवीज हैं? कोई एडुकेटेड मूवी जो हमें शिक्षा ये दे। फिल्म पायल पायल अपने मुताबिक लाल सिंह चड्ढा क्यों फ्लॉप हुई? इस सर तरह ये से क्यों फ्लॉप? लाल सिंह, एक मैंने वीडियो देखा है, एक हॉल के सामने एक लड़का ऐसे माइक पकड़कर बोल रहा है, प्लीज बॉयकॉट कीजिए, मत देखिए लाल सिंह चड्ढा, ये हमारी हिंदुत्व के अगेंस्ट में जाके बोले हैं। तो आई थिंक वो लड़का ऐसे साड़ियां नहीं है। तो लेकिन आमिर खान ने पीके में ऐसे कुछ चीजें देखे हैं, दिए हैं हम लोगों को, जो शायद एक कास्ट के लिए बहुत नेगेटिव है। सुशांत के साथ साथ ये चल रहा तो है। बेसिकली सुशांत सिंह राजपूत एक है, उसके बाद एंटी एंड है हिंदू सब परसेप्शन या एंटी इंडिया परसेप्शन, वो अदर रीजन। सब मिलाकर क्योंकि एक मतलब Okay. पूरी तरह से एक एक जगह पर भाग है कि कोई वजह से बट कर रहे, कोई कुछ वजह से, लेकिन एंड ऑफ द टाइम बॉयकॉट बॉलीवुड ही हम लोगों को, इस इंडस्ट्री को नहीं रखना है, बॉयकॉट करना है। हर खराब चीज हम जैसे अपने जिंदगी से बाहर करते हैं, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि इस तरह से धीरे धीरे, जैसे आपने कहा अभी 118 करोड़ शायद लगाए हैं लाल सिंह चड्ढा को, उसके बाद ये आ गया है 50 करोड़ में, उसके बाद 20 से 30 से 4 से 5 से शायद ये लोग पैसा लगाने में ही डरेंगे। और हम पब्लिक, हम लोग तो यही चाहते हैं, जैसे सुशांत को डराते थे ना बॉयकॉट बाहर से, इंडस्ट्री से बाहर करने के लिए, हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री ही बंद हो जाए, ताकि ना रहेगा इंडस्ट्री और ना रहेगा ऐसे कोई गलत काम। Okay. Okay. Many, there was this statement by Kareena Kapoor. Do you think What that has statement? also led to the disaster? That Kareena Kapoor statement that No, किसने no, बोला no, देखने के no, लिए? देखना है तो no. देखो, कौन बुला तो नहीं रहा है So, okay, I don't Did that agree have an with impact? Payal with regards to, this feeling of whatever is beyond, because even Sushant Singh Rajput's Kedarnath had gone into controversy because of Love Jihad and things like that, and it ended up becoming a hit movie. This is not the reason. The reason is that public is extremely angry with the fact that you have done indeed extreme justice to somebody like a Sushant Singh Rajput. You have to understand that Sushant Singh Rajput was not just an actor. He was much more. He was also a physicist.
he was also somebody who was connecting with his fans on social media and on Instagram. So there's a lot of the youth of the country, which really relates to him. And since he was a very intelligent man and he was very positive person, very humble and down to earth, I feel that because of that, Sushant has really made a huge impact in the society. And also because after his death, his Okay. passing away, there was so much hype in the media, unlike any other incident like this which has happened in Bollywood, that each and every individual by the end of the day decided on their own whether Sushant took his own life or Sushant was murdered. And as we kept watching on TV month after month after month, it became more and more clear that he was somebody who could never take his own life. Now, agar judge, Negotiable. There's no need to discuss the No, suicide angle because it doesn't match. It yes, doesn't match the exactly. reality with But the facts. that is what I'm saying, that the reason why public has not forgotten Sushant Singh Rajput is number of factors. Bollywood boycott is the reason why Bollywood is failing. It's as simple as that. And the reason is Sushant Singh Rajput. इससे पहले बहुत से एक्टर्स के साथ similar kind of incidents हुए हैं. Nobody has taken or nobody has been able to, nobody has fought for justice as much as they are fighting for Sushant. आप कितने नाम ले चुके हो? Okay. मधु आपको क्या लगता है ये करीना कपूर का जो स्टेटमेंट था कि अगर किसने बोला है देखना है तो देखो नहीं तो नहीं देखना, क्या उसका इम्पैक्ट हुआ है? मैंने को लगता है नहीं हुआ. डू यू थिंक इट हैज हैड एन इम्पैक्ट इस फिल्म के फ्लॉप होने में? सर मुझे लगता है कि उनका जो स्टेटमेंट है ना उसने एक्सेलरेट किया है. मतलब जो सुशांत ही मेन रीजन है, लेकिन जो एक्सेलरेट करने का काम किया है ना वो सर आप कहाँ चले गए? सर है ठीक है मैं बोलती हूँ. मेरे हिसाब से तो जो करीना कपूर का जो स्टेटमेंट है ना उसने सर सिर्फ एक्सेलरेट किया है. मतलब जैसे कहते हैं ना उसको आग जो बुझ रही थी ना सर, जो थोड़ी थोड़ी बुझ रही थी, थैंक्स टू करीना कि आपने उसको थोड़ी सी हवा दे दी तो आपने फिर से एक्सेलरेट कर दिया. सर बस यही काम किया है. अदरवाइज जो ये बॉयकॉट है ना वो बिल्कुल मैंने आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो बॉयकॉट सिर्फ और सिर्फ सुशांत की वजह से ही है. एक्चुअली है क्या ना, सुशांत ने ना सबके दिमाग को ना जरा खोल दिया है, जरा ओपन माइंड कर दिया है. सबको सोचने समझने की जो शक्ति है ना वो सुशांत ने दे दी है. अब बाकी जो चीजें हम दिमाग लगा रहे हैं ना सर वो सुशांत की वजह से लग रही है लोगों का दिमाग. और जो बॉलीवुड का दिमाग जो बंद हो रहा है ना, मुझे तो लगता है कि उन लोगों ने जो प्लास्टिक सर्जरी और बॉटक्स है ना वो एक्सटर्नल ऑर्गन की जगह इंटरनल ऑर्गन में भी करना शुरू कर दिया है. मतलब एक्सटर्नल ऑर्गन में तो कर रहे थे, अब उन्होंने दिमाग पे भी दे दिया है. इसीलिए वो लोग ऐसे उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट और उल्टी मुल्टी हरकतें कर रहे हैं. और एक नहीं सर, सबसे मजेदार बात क्या है कि एक नहीं मतलब पूरे बॉलीवुड के ऊपर ही इफेक्ट हो गया है. पता नहीं क्या, या सुशांत जो बॉयकॉट सुशांत का उसका नेगेटिव इफेक्ट हो गया है. मुझे तो लगता है कि जो सुशांत का नाम है ना उनके दिमाग पे असर करता जा रहा है. उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है. सबके सब या तो बोलती बंद है, बोली नहीं है. एक भी स्टेटमेंट नहीं है. मेगा आई एम कमिंग टू यू, जस्ट स्टे ऑन. मधु एक भी स्टेटमेंट नहीं है, एक भी आदमी नहीं है जो सुशांत का नाम भी लेता है. ऐसा मतलब इंडस्ट्री की फिल्में नहीं चल रही, कुछ नहीं हो रहा है, सब फिल्म फ्लॉप हो रही, कोई भी एक आदमी नहीं है जो बोल रहा है. मतलब ये जो अनुराग कश्यप वाला स्टेटमेंट है वो है, लेकिन दैट हैज नथिंग टू डायरेक्टली से कि सुशांत ने हमको बर्बाद कर दिया. वो ये कह रहा है कि सुशांत ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि सुशांत के कारण हम लोग बर्बाद हो गए, ये सुशांत आर्मी के कारण बर्बाद हो गए. ऐसा क्यों? ये इसलिए सर क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रूफ है ये बोलने के लिए कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की. अगर उसने आत्महत्या की होती ना तो हर कोई बोल रहा होता अरे पता कर लो, अरे देख लो. अच्छा बोलने में क्या जा रहा था कि अच्छा इतना सारे लोग चिल्ला रहे हैं, हमारे ऑडियंस इतना चिल्ला रहे हैं, जिनके बलबूते पे हम इतना चिल्ला रहे हैं, तो ठीक है मुंह से बोलने में क्या जा रहा था कि इन्वेस्टिगेशन कर लो यार क्या जाता है. ऐसा वो लोग भी तो बोल सकते थे ना कि यार जब सब बोल रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन. ये मुंह पे जो पट्टी एकदम जो अपना दे जस्ट जिप देयर लिप्स, इसका क्या रीजन है? मतलब इसका ये अपने आप में सर ये प्रूफ करता है कि दाल पूरी की पूरी काली है.
पूरी की पूरी दाली काली है। अगर ये बोल रहे होते ना सर कि ठीक है, क्या मतलब क्या हो जाता है, ये क्या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो ये बोल देते कि भाई इन्वेस्टिगेशन कर लो तो कोई जजमेंट निकल के चली आती? कौन है ये लोग? कुछ भी नहीं है ये लोग। ये सुशांत के एक क्या बोले, एक फ्रेंड या उनके उसके इंडस्ट्री के लोग थे। वो तो बोल सकते थे ना, अगर किसी के सोसाइटी में कुछ मोहल्ले में कुछ हो जाता है तो वो अगर उसका पड़ोसी ये बोल देता है कि भाई इन्वेस्टिगेट कर लो, तो कोई वो जज तो नहीं बन जाता ना कि जो जजमेंट निकल के आ जाएगा। सर ये बहुत बड़ा प्रूफ है, इस पे आप दिमाग लगाने की यही बात है कि ये नहीं बोल रहे, यही बहुत बड़ा प्रूफ है कि दाल पूरी की पूरी काली है। बेसिकली यू आर सेइंग कि अगर मान लो कुछ भी नहीं था तो फिर नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? कोई भी नाम लेने को तैयार नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यस मेगा, पायल कुछ बोल रही थी। मेगा एक मिनट पायल को दे। पायल, शी इज रेजिंग हर हैंड, शी वांट टू से समथिंग। सर ये जो बात है ना, वो जो मधुर अभी कही कि पड़ोसी नहीं जानते होंगे कि रीजन क्या है, लेकिन यहाँ पर तो ये लोग शायद जानते हैं कि रीजन क्या है, और इन लोगों का डर है कि हम अगर मुंह खोल दे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाए। इस वजह से ये लोग ऐसे जिप लगा कर रखे हैं मुंह पे, सेलोटेप लगाकर, कि ये लोग कहीं पर ना खुद कुछ बोल रहे हैं, ना इतने बड़े बड़े जो हम सो कॉल्ड फिल्म स्टार हैं, ये लोग ना खुद बोल रहे हैं, ना किसी को बोलने दे रहे हैं। जो सच जानते होंगे वही सच छुपाते हैं। जिनको सच पता नहीं होगा वो तो बोल ही देते कि हाँ ठीक है इन्वेस्टिगेशन करो। उन लोगों को शायद सच मतलब पूरी तरह से पता है, इसीलिए वो डर के मारे चुप है। और सर मैं एक और इसमें एड ऑन करना चाहूंगी कि बॉलीवुड के जो मूवीज के जो हम लोग कैटेगरीज देख रहे हैं, तो इसमें कुछ अजीबोगरीब मूवी है जो बहुत पहले बॉयकॉट होना चाहिए, जैसे कि OMG और गॉड टू सी ग्रेट हो। ऐसे मतलब हमारे ही रिलीजन को उठा उठा कर क्यों दिखाते हैं? मेरा ये पर्सनल क्वेश्चंस है कि कोई किसी भी धर्म या जाति कोई कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब बेसिकली पायल इज सेइंग देयर इज अनदर, so you are saying there is another angle to it। एक तो है SSR वाला, दूसरा है मुझे लगता है बट जो डोमिनेटिंग है ना पायल, मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलीजन वाला एंगल उतना डोमिनेटिंग नहीं। ये लोग तो अपने कन्वीनियंस के लिए जानबूझ के रिलीजन वाला एंगल को डालते हैं कि पब्लिक जो है वो इसलिए लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट कर रही है क्योंकि आमिर खान ने एंटी हिंदू स्टेटमेंट दे दिया, या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको सुशांत के बारे में बात ही नहीं करना है। नहीं। अगर बॉयकॉट हो रहा है तो बॉयकॉट तो यार एंटी हिंदू, एक मिनट 1 मिनट, एंटी हिंदू मतलब फीलिंग के साथ फिल्में तो पहले भी बन रही थी, एंटी इंडिया स्टेटमेंट तो पहले भी लोग दे रहे थे, लेकिन बॉयकॉट नहीं हो रहा था। बॉयकॉट तो सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद से हो रहा है। तो इट हैज टू बी डायरेक्टली रिलेटेड ओनली एंड ओनली टू सुशांत। मैं कहना ये चाहती हूँ, बाकी फैक्टर सिर्फ ऐड हो सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मूवी बॉयकॉट होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस वजह से बॉयकॉट हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ ऐसी मूवीज जो हमारे मतलब ऐसे तो उसका उसी को मैं बता रहा हूँ ना पायल, ये मूवीज इसलिए बॉयकॉट नहीं हुई उस टाइम में क्योंकि सुशांत नहीं था, एंगर बॉलीवुड के अगेंस्ट में नहीं था। सो दे एस्केप्ड। यस, सुशांत नहीं था तब सुशांत नहीं था। हम लोगों को आंखें और दिमाग खोलने वाला कोई नहीं था जो बंद करके रखे थे। नहीं सुशांत, मैं कह रहा हूँ सुशांत था कि नहीं था वो बात की बात। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। वन इज सुशांत's death and the reason behind the death, that is one angle. But the failure of the industry to come and join the campaign and support the justice demand or ask, at least as an industry they should have asked कि आखिर सुशांत के साथ हुआ क्या। इतना ही छोटी सी बात थी ना, क्योंकि किसी ने नहीं पूछा तो दे यानी द जस्टिस फॉर कैंपेन, जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन जो लोग चला रहे हैं, जो SSR फैंस हैं, SSR आर्मी है, उन लोगों ने अपना तरीका निकाला to tell them कि अगर आप हमारे साथ नहीं हो तो हम भी आपके साथ नहीं। This boycott is just to indicate that we are not supporting you because you are not supporting us. This is how I understand. पहले तो सारी फिल्में हिट हो गई, वो किसी ने सोचा ही नहीं ना कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा। तो वो OMG हो या वो दंगल हो या PK हो कि कोई भी हो, किसी ने सोचा ही नहीं ना कि इट्स अ कमेंट ऑन रिलीजन या कमेंट ऑन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये एंगल से किसी ने कभी फिल्म देखी नहीं है। ये सारी एंगल तो सुशांत के डेथ के बाद आ रहे हैं, लेकिन प्राइमरली इट इज ओनली बिकॉज पीपल थॉट दैट बॉलीवुड एज अ फ्रेटर्निटी विल कम एंड सपोर्ट जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन, बिकॉज दे डिड नॉट सपोर्ट, दे डिड नॉट आस्क एनीथिंग इन फेवर ऑफ सुशांत, दे डिड नॉट क्वेश्चन द डेथ। That's the reason people decided enough is enough, we will punish you, and this boycott is an
attempt to punish them in their own way. This Yeah, is what yes, I sir. Yes, Megha. Sushant please. is the Hi only reason. everyone. Megha बोलिए. Yeah. No, just stay on. While your views are acceptable, there is no problem. Everyone has a view and that is a point of view. ऐसा नहीं है वो point of view नहीं है. वो भी point of view है. लेकिन वो adding factor है आज के date. Main जो मुझे लगता है that is Sushant Singh Rajput, not anything No. else, which they are not admitting. सर मेरे दो व्यूज है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ सुशांत डेथ एंड हम सबको लगा कि बॉलीवुड ने सपोर्ट नहीं किया और ऑल द वे जिसने भी सपोर्ट नहीं किया. अगर मैं रिलीजन की बात करूं तो जैसे आपने मेंशन भी किया था कि अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, अभी हम बहुत सारे स्पोर्ट्स करते हैं या पॉलिटिक्स है. अगर रिलीजन ही इतना बड़ा एंगल होता तो हम स्पोर्ट्स पे तो कभी हम लोग नहीं देखते कि कौन किस रिलीजन से प्लेयर या एथलीट है. राइट हम लोग बिकॉज वो देश एंड ऑफ द डे इंडिया, वो देश के लिए खेल रहे हैं. मतलब पर्सनली मैं स्पोर्ट्स बहुत देखती हूँ तो मेरे लिए वो इंडिया एंड ऑफ द डे. हाँ, so we celebrate yeah. Nikat As well as the Zareen as person, much as yeah, we celebrate जिन्होंने long jump पे जीता है Ellen, I think I don't remember the exact name. So we don't कि कौन है क्या जितना पीवी सिंधु को सेलिब्रेट कर रहे हैं एग्जैक्टली कौन से स्टेट से बिलोंग करते, कौन से पार्ट से बिलोंग करते, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते, वी डोंट केयर बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स इंडिया एंड दे आर प्लेइंग फॉर इंडिया. राइट तो रिलीजन या सेकेंडली मेरा व्यू ये है कि इट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ सुशांत डेथ. बट जो अच्छी बात ये है कि अब लोग हर चीज देखने नहीं, मतलब अच्छी बात जो लोगों को लर्न हुई है इससे कि वो हर चीज देखने नहीं जा रहे हैं. राइट इधर वो बॉयकॉट कर रहे हैं. जैसे इधर सुशांत इज वन ऑफ द फैक्टर. अदर फैक्टर जैसे मैं बोलते मेरा मन ही नहीं करता सर, कुछ देखने का मन ही नहीं करता उसके केस, क्योंकि इतना कुछ उसके केसेस की वजह से हमें इतना कुछ पता चला बॉलीवुड के बारे में, अंदर क्या वो लोग करते हैं, पर्सनल लाइफ में वो लोग कैसे हैं, एंड दे आर इनटू सो मेनी ड्रग्स और ये सब पता चला. क्या मन ही नहीं करता उनको देखने का. तो मैं तो मेरा मन ही नहीं करता. मैं तो यही बोलूंगी, बहुत क्लियर आंसर है मेरा. आई डोंट वांट टू सी देम. एक एंगल है. होता क्या है ना कि जब कोई चीज गड़बड़ हो जाए ना तो एवरीथिंग इज स्क्रूटिनाइज्ड, एवरीथिंग इज स्क्रूटिनाइज्ड. सो अभी क्या हो रहा है कि अभी की फिल्में तो स्क्रूटिनाइज हो ही रही हैं, अभी की इनके एक्शंस तो स्क्रूटिनाइज हो ही रहे हैं. अब पब्लिक ने पुराने भी एक्शन स्क्रूटिनाइज करने लगे. इसलिए पीके में क्या दिखाया, ओएमजी में क्या दिखाया, वो तारे जमीन पे क्या दिखाया, वो सारा पब्लिक निकाल के देख रही है क्योंकि उनको बॉलीवुड के सारे जो नेगेटिव चीज है ना वो ढूंढने. अरे भाई आपने ऐसा काम ही क्यों किया पब्लिक को जाकर पोस्टमार्टम करना पड़े. तो whether you like it or not, public is not in a mood to spare you. So they are going and checking कि क्या उस फिल्म में तो गड़बड़ नहीं हुई थी, क्या उस फिल्म में तो गड़बड़ नहीं किया था, क्या उस फिल्म में तो अब सारी चीजें जनता जाग गई है. तो क्या होता है ना, वो गड़े हुए मुर्दे कहते हैं ना उखाड़ना, तो पब्लिक वो भी उखाड़ के ला रही है जो कभी किसी ने डिस्कस पहले सर मूवी ठीक है, स्टोरी देख ली, मूवी देख ली, आ गए हम. लोग ज्यादा सोचते ही नहीं थे, एंटरटेनमेंट पर्पस से ही देखते थे. बट हमें ये कभी पब्लिक को रियलाइज हुआ कि वो हमारे ही पैसों से वेयर दे आर गोइंग एंड दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ और विद आवर मनी. तो अब वो लोगों को समझ आ गया है कि यार हर चीज नहीं देखनी, मतलब जो अच्छे कंटेंट को देखो, अच्छे जो लोगों को हमारा सपोर्ट की जरूरत है उन्हें देखो, स्पोर्ट्स देखो. ये सेलिब्रिटी बोलते हैं, कौन सेलिब्रेट कर रहा है बाय द वे इनको? हम तो नहीं, मैं तो अभी बोलती हूँ इनको एंटरटेनर बोलो, सेलिब्रिटी क्यों बोलते हैं? और वो मूवी स्टार पाए, कोई मूवी स्टार नहीं है प्लीज. नहीं अब तो सेलिब्रिटी तो बहुत मेरा सेलिब्रिटी तो बहुत दूर की बात हो गई. अभी तो पहले सक्सेसफुल तो हो, इनकी फिल्में ही अलग ही बिल्कुल अलग एरा है. मधु ने कहा था ना, मधु यू सेड ना कि बॉलीवुड प्री सुशांत एंड बॉलीवुड पोस्ट सुशांत, करेक्ट? मधु ने वो बोला था कि बॉलीवुड को ना सर पहले प्री सुशांत और पोस्ट सुशांत लोग जानेंगे. ये बिल्कुल सही है. प्री सुशांत हीरो हो गए थे, अब पोस्ट सुशांत ये लोग जीरो हो गए. अब जीरो से वापस हीरो बनने. So basically I just want to go back, and I think somewhere down the line we've never got down to do so many things that we wanted to do when things were really, really hot about Sushant Singh Rajput. And I've always spoken this fact that how Sushant has actually done premonitions and he's done predictions of how things are happening today. Not that I'm sure he intended to, but it has happened. So in one of the MS Dhoni interview with Bollywood Hangama, I remember he had said this quote about, because when MS Dhoni had become such a big hit,
and he had asked about, now are you going to raise your fees, and he had said, I've already, done 5 movies, and how people are saying that Sushant's attitude has changed, especially after the success of MS Dhoni and things like that. So there was this quote he had quoted from Mahatma Gandhi was, first they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. Now, according to me, all of it has happened with Sushant. First, they ignored him despite him giving successful movies. They were always forming gangs. They laughed at him because there was so much, articles written about him, criticizing him or talking about his lifestyle or his acting and things like that. And then they fight you. May all these people ganged against him. They formed groups. They they did conspiracy against him and things like that. And in the end, Sushant is winning, and then you win. So मैं अपना ही बता सकती हूँ. No, that is your interpretation, Manny. Now let's put the same interpretation post Sushant, है ना? Pre Sushant and post Sushant. So let's have the same thing post Sushant. Same thing has happened. If I go by what you are saying, exactly same thing has happened with SSR fans also. First they ignored them. No? First they right? ignored So because they Please thought repeat. कि कुछ time के बाद, हाँ, उनको लगा कुछ time के बाद First सब they said silence that it हो doesn't जाएगा. exist. Yeah. So one second. So first they ignored them. So you kept shouting. All the fans were shouting, please join, please join. इन्होंने ignore कर दिया. Yes. Correct. Then they made fun of you. अरे कुछ लोग हैं आ जाते हैं मजाक बना रहे हैं सुशांत के डेथ का इन्होंने त्योहार बना दिया फेस्टिवल बना दिया 4 लोग आते हैं और आके बोलने लगते हैं जब उसके बाद नहीं आता तो धमका रहे हैं है ना लेटेस्ट धमकी है ना कि फिल्म नहीं देखोगे तो एंटी नेशनल स्टैंड है फिल्म को नहीं देखना बॉलीवुड फिल्म को नहीं देखना ये एंटी नेशनल स्टैंड है क्यों आप नेशन के ग्रोथ का नुकसान करो रहे भैया वाह मतलब हम कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं हम पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं ये हम डिसाइड करें कि आप ही बता दो वो भी है ना कि अगर हमने अक्षय कुमार की फिल्म नहीं दिखी तो देश का ग्रोथ रुक जाएगा लेकिन हमें अक्षय कुमार की फिल्म देखेंगे तो देश का ग्रोथ होगा अगर हमने RRR देख ली तो देश का ग्रोथ नहीं होगा है ना ये बढ़िया है Then you win. लास्ट क्या था win right so you win अभी you haven't won अभी you haven't won so starting तो होएगी ना हमारी winning की तो start हो ही गई ना we are already on the path you are making all the Bollywood movies flop which they would have never even dreamt of ये तो सिर्फ आगाज है मैं तो कह रहा हूँ ना ये अभी सिर्फ आगाज है नहीं मतलब सर मुझे ऐड ऑन करना है मैं बता रहा हूँ आपको हमारा पैसा हम अपने लिए खर्च ना करें हम जहाँ यूज करने वहां ना करें इनकी मूवी नहीं देख रहे तो मतलब ग्रोथ प्रेशर हो रहा है वाह ये अजय को अक्षय कुमार को मुझे एक चीज बोल रहा है कि जो 100 करोड़ लेते हैं अपनी मूवी करने के लिए उसको 1 करोड़ ले ले फीस ये भी एड ऑन हो जाएगा अपनी फीस तो कम करेंगे नहीं हम अपने पैसे नहीं but my reading Megha is that what Manny is saying na my reading is that what you are seeing right now is just the beginning no, you justice, haven't seen justice you will have to wait for some time yes, to see sir the justice the justice already started not only in Bollywood even in politics where is Uddhav Thackeray's government today what you are saying is a start what you are saying is a start according to me it is not no, then that will when I say it I mean wait and watch and then we will say we had started it is actually starting now so sir I just wanted to say this much only and I wanted to end my conversation regarding this so I think we should carry on and I'm sure like you're saying it's just going to start or according to me it started it doesn't matter as long as things are happening even if the judiciary system is taking its own time the justice is happening in its own way thank you thanks bye perfect thanks man सर देखिए अब बात करते हैं रक्षाबंधन की ठीक है आप रक्षाबंधन वाले दिन रक्षाबंधन की मूवी करके आप सोच रहे हैं कि आपकी मूवी हिट हो जाएगी कतई नहीं होगी कभी नहीं होगी क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन कुछ ऐसी बहनें हैं जो अपने भाई के लिए बिल्कुल तड़प गई 2 साल से तड़प रही हैं और आप रक्षाबंधन वाले दिन रक्षाबंधन मूवी नाम से लेकर के आ जाओगे वो हिट हो जाएगी होने नहीं देंगे सर मैं है ना अभी कल से मैं लगातार है ना मैं ये जो अपने
बुक माई शो पे जा करके मैं देख रही हूँ कि हम, जैसे मैं गुवाहाटी में हूँ तो गुवाहाटी में क्या हाल चाल है सर, मतलब डिटर्जेंट डाल के धोया इधर में, डिटर्जेंट डाल के धो दिया, मतलब पूरा का पूरा सिनेमा हॉल खाली है, पूरा का पूरा। आइनॉक्स यहाँ पे अभी नया नया क्योंकि ओपन हुआ है तो वो काफी खूबसूरत, बड़ा अच्छा, लग्जरियस और बहुत अच्छा है, तो शायद उसमें थोड़ी बहुत बुकिंग हो रही है क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पे, इतनी ठंडी जगह लेकिन इतनी गर्मी हो रही है, तो शायद वहां पे लोग सोने के लिए जा रहे होंगे, चलो यार मस्त गद्दे पे जाकर के नींद मार के थोड़ी आ जाते हैं, थोड़े बहुत हो ही जा रहे होंगे। अदरवाइज पीवीआर वगैरह तो बिल्कुल खाली है, आप ना रक्षाबंधन आप चला पाओगे, ना आप लाल सिंह चड्ढा चला पाओगे, लाल सिंह चड्ढा नहीं चलने के बहुत। और रही बात एंटरटेनमेंट की ना सर, एंटरटेनमेंट तो हर जगह लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रहा है ना, पॉलिटिक्स में एंटरटेनमेंट है, टिकटॉक पे टिकटॉक में बंद हो गया तो जो छोटे छोटे रील्स और जो छोटे छोटे शॉर्ट्स आ रहे हैं उसमें एंटरटेनमेंट की किधर कमी है, आपको एंटरटेनमेंट के लिए कोई, और वो भी उससे एंटरटेनमेंट करने जाएंगे जिससे इतनी बड़ी चिड़ है, मतलब मैं जिससे चिड़ूंगी, जिससे मुझे वो चिड़ हो रही है, मैं उसको क्यों देखने के लिए जाऊंगी भाई, और एक ही चेहरा 60 साल तक मैं क्यों देखूंगी। और अभी आमिर खान 60 साल के हो गए हैं, हाँ 60 साल के बाद हमें ये याद आ गया कि वो मुस्लिम है, 60 साल तक हम लोग सो रहे थे। मधुबन में, और अगर रिलीजन एंगल होता 1 मिनट के लिए तो केवल आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान का बॉयकॉट हो रहा होता, अक्षय कुमार और अजय देवगन क्यों हो रहा होता, यहाँ तो थोक के भाव में बॉयकॉट हो रहा है भाई, बॉलीवुड को ही बॉयकॉट कर रहे हैं ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि नॉर्थ इंडियन है कि साउथ इंडियन है कि वेस्ट से आया कि ईस्ट से आया, बिहार से है कि यूपी से है, महाराष्ट्र से है, इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखनी, एंड ऑफ द डिबेट यही है। तो जैसे अभी इसने क्या मेघा ने या किसी ने बोला ना ऐसे करके कि हम लोग है ना वो जैसे खोद खोद के निकाल रहे, अभी बताऊं वो पीके मूवी आ रही थी, मैंने भी वो मूवी इसीलिए देखी कि जरा देखे तो है कि क्या है इसमें, इसने क्या क्या है। सो सिर्फ यही बात नहीं है कि हिंदुओं को ही उन्होंने किया है, उनका आप अगर देखेंगे ना तो वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो एंगल बनाते हैं वो भी डेंजर तरीके से एंगल बनाते हैं। आप इस मूवी की एंडिंग देखिएगा, पाकिस्तान का जब वो सीन दिखा रहे हैं तो उनके कल्चर को कितना डिसेंट, कितना अच्छा, और जो सबसे बड़ी बात सर आपने ध्यान दी है कि पीके की मूवी को लेके हिंदू हिंदू हो रहा है, और पीके की मूवी में था कौन, सुशांत, और सुशांत का सिर्फ वो एक गाना था, बहुत अच्छा सा सॉन्ग था, एक सॉन्ग था जिसमें उसको पूरा वो सुशांत के ऊपर पूरी फिल्म आई गई और उसको सुशांत को हटा के रिप्लेस करके आमिर खान खुद डांस करने चले आए। हाँ वो मतलब उन्होंने मुझे लगता है उस मूवी में बहुत सारा उसके साथ इंजस्टिस किया होगा, इतने खूबसूरत सुशांत को, इतने इंटेलिजेंट सुशांत को पाकिस्तानी बना करके वो लेके आए। आप इस मूवी को देखिएगा, मुझे भी नहीं पता था, अब मेरे को लगा, मैंने कहा यार देखे तो सिर्फ पीके मूवी इतना क्यों बोल रहे हैं, देखा ना सर, अगर आप उस मूवी को ध्यान से देखें ना बहुत सारी चीज, तब मुझे लगता है कि ये भी सुशांत का किया धरा है, पीके मूवी का ही वो नाम क्यों ले रहा है, उसमें वो पाकिस्तानी इतना हैंडसम, इतना सुंदर लग रहा है ना सर, और उसमें उसको डिसेंट, ब्यूटीफुल, पूरे पाकिस्तान को डिसेंट दिखाया है, और हिंदुस्तान को पूरा इतना मतलब बैंड बजा के रखी है ना सर, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ You are right. That part I agree. That part I agree कि भाई अगर मुसलमान पाकिस्तान के पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, डिसेंट है, तो हाँ। हिंदुस्तान के मुसलमान भी तो डिसेंट हैं। तो यहाँ पर आप दिखा रहे हो कि स्टूडियो में वो हाफ पैंट पहन के घूम रहा है, गाड़ी हिल रही है, कोई भी मंदिर से जूते उठा के ले आ रहा है, कहीं पर भी प्रसाद चढ़ाने लगे, कि मतलब क्या है हिंदुस्तान का, मतलब कोई जमूरों की बस्ती है क्या, और वहां पर बड़ा तहजीब से लोग रह रहे हैं पाकिस्तान में। अरे भाई इतना ही तहजीब था तो फिर तो वहां वुमेन सेफ्टी रहती, तो वुमेन की सेफ्टी नहीं जिस कंट्री में, वहां आप तहजीब की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जहां पर मुसलमान लोग ज्यादा तहजीब फॉलो करते हैं वहां पे आप बता रहे हो यहाँ सब उचक्के हैं, ऐसे थोड़ी होता है। तो दैट आई एग्री, दैट इज द डिफरेंट है। बट ये क्यों हो रहा है, बट मधु ये क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन तो कल तक ना मैंने डिस्कस किया, ना आपने डिस्कस किया, ना मेघा ने किया होगा, ना पायल ने किया होगा। ये सुशांत के जाने के बाद जो पूरा एरा स्टार्ट हुआ है ना, पोस्ट सुशांत एरा जिसको दौर बोलते हैं, उस दौर में जो चीज मिल रही है ना पब्लिक उसी को पोस्टमार्टम कर डाल रही है। आओ जिसने बोला उसी को लपेट लिया। अब तापसी पन्नू नहीं है लेकिन तापसी पन्नू ने नहीं बोला, तापसी पन्नू को लपेट लिया। अभी ये नहीं बोल रहा है उसको लपेट लिया। किसी को भी बख्श नहीं रही है पब्लिक, सबको एक ही तराजू में तोल रही है। तब फिर इसमें रिलीजन हो ही नहीं सकता। मेरा पॉइंट है इट इज ओनली एंड ओनली अबाउट सुशांत सिंह राजपूत, रेस्ट ऑल इज आर एड-ऑन्स। बोलते हैं ना वो एड-ऑन्स है ना, ये एड-ऑन्स है। मेन इशू इज ओनली एंड ओनली सुशांत सिंह राजपूत। सो दैट्स व्हाट पायल वाज सेइंग। बट बेसिकली बाकी चीजें इसलिए आ रही हैं क्योंकि लोग अब हर चीज को एनालाइज करने लगे। यस मेघा, गो अहेड।
मेगा आवाज आ रही है? एक सेकंड मेगा, शायद यू आर ऑन म्यूट। वन सेकंड। हाँ या सर Yes, go पोस्ट ahead. सुशांत एरा भी सबसे बोलिए। पहले तो हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिला है। एक तो हम पीपल आर ऑन ट्विटर, ऑन सोशल मीडिया, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज, दे आर शेयरिंग देयर एनालिसिस। तो सबसे बड़ा चेंज तो ये कि हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिला है पहले तो डिस्कस करने के लिए, टू शेयर आवर व्यूज, जो कि और मतलब क्योंकि हम लोग व्यूज शेयर कर पा रहे हैं, इसलिए अब लोग एज अ यूनिटी दे आर टेकिंग सम स्टेप्स लाइक बॉयकॉट। अगर वो देख रहे हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग एंड देन दे आर एज अ यूनिटी दे आर टेकिंग सम स्टेप्स व्हिच आई फील। एंड सेकेंडली पहले ये लोग आके But when others speak, they feel कि they are talking, so उसका impact हो ही जाता है। I agree with you. yes they are Yes, seeing, yes. they are analyzing All three of you can speak. All three of you are not on mute. Anyone can speak right now. मधु, पायल, मेगा, जिसको भी लग रहा है पॉइंट, आप सब लोग बोल सकते हैं। सभी का जो माइक है वो हॉट है, कोई इशू नहीं। सेकेंडली सर मैं एक बोलना चाहूंगी। इंटरव्यू में बोलते मैं था बोली बोलो जैसे ये पायल, लोग बोलो पायल, गो अहेड। बोलो भाई कोई पायल प्लीज गो अहेड, Oh, उसके बाद मेगा बोलेगी। सर मैं एड ऑन करना चाहूंगी जो इकोनॉमी बोला है ना अक्षय कुमार ने। सर ब्लैक मनी तो इन लोगों के पास रहता है, टैक्स ये लोग पे नहीं करते हैं, इकोनॉमी का मतलब मजाक तो ये लोग उड़ाते हैं, तो हम आम पब्लिक कहाँ से कुछ किए अक्षय हैं? कुमार के बारे में ये नहीं बोल सकते। नहीं अक्षय कुमार के बारे में आप अक्षय टैक्स कुमार को लेके नहीं, नहीं बोल सकते। अक्षय कुमार नहीं, अक्षय ये पूरा कुमार बॉलीवुड, टैक्स पेइंग सर एक्टर। आप अक्षय कुमार को ऐसे पूरा बॉलीवुड के बारे में मैं बोल रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अक्षय को हम छोड़ दे रहे हैं, एक इंसान को छोड़ दे तो बाकी सब क्या दूध के धुले हैं, सब क्या सही समय पे टैक्स पे करते हैं, सब इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और हम ही क्या सभी मतलब गुजर रहे हैं, हम पैसे नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, हम पूरा। हाँ अक्षय कुमार उतना कमा रहे हैं तो उतना टैक्स देंगे कि नहीं? पार्लियामेंट में किसी ने वो दिया था, बोल गए नहीं अक्षय कुमार का नाम क्यों होता है भाई? वो चक्कर देते हैं क्या? जितनी उनकी कमाई है और जितना परसेंटेज टैक्स लेती है गवर्नमेंट, उतना ही तो देते होंगे ना, या एक्स्ट्रा देते होंगे? नहीं इतने में तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं, और ले लो। हम जो सर्विसमैन है, हम लोग जो सर्विस कर रहे हैं, हमसे तो बिना पूछे फट से 60% टैक्स ले रही है जनता, अरे गवर्नमेंट। हाँ तो अक्षय कुमार कौन सा दे देने हमारे सब 60% नहीं ले रही है गवर्नमेंट, 30% सैलरी से, और 30% है ना वो जो हर जगह हम जाके पे करते हैं ना उसमें, और हमारी तो सैलरी 70% मुझे तो लगता है कि टैक्स में ही चली जाती है। तो अक्षय कुमार कौन सा बड़ा तीर मार रहे हैं? वो इतना कमा रहे हैं तो वो ऐसा तो नहीं कहते ना, नहीं आपने इतनी टैक्स क्यों काटा और हमसे ले लीजिए, ऐसा तो नहीं करते ना, जितना कमा रहे हैं उतना टैक्स दे रहे हैं। तो उसमें इतना नाम क्यों अक्षय कुमार का, मुझे ये समझ में नहीं आती। चोरी नहीं करते बोलते, अरे आपका तो पता नहीं कहाँ के वो सिटीजन है कनाडा के, आप तो कहाँ कमा रहे, कहाँ क्या बचत कर रहे हैं, क्या हम लोग हिसाब किताब लेने जा रहे हैं? हाँ कहाँ आपने कितना कमाया, उसका कितना टैक्स दिया, इंडिया में जो कमा रहे हैं उसका टैक्स दे रहे हैं, तो कौन सा तीर मार रहे हैं? और सबसे बड़ी बात सर ये है ना, ये सब सिर्फ है ना, ये कहते हैं ना मुखौटा, अपना मास्क लगा करके घूम करके आकर के, तो अब तो सर सबसे बड़ी बात है क्या ना, अब इनका मास्क भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसे अभी, और मतलब लेटेस्ट एग्जाम्पल है करीना कपूर जी। अरे करीना कपूर मतलब दोबारा, पहले तो लोग इतने मतलब चिल्ला ही रहे हैं कि आप बोल रहे हैं मूवी नहीं देखो, जब दोबारा इंटरव्यू देने आई है, दोबारा आपको इंटरव्यू देखना चाहिए। मतलब उनका क्या है ना, उनकी बुद्धि में क्या चल रही है कि हम 200 एकड़ के घर में रहते हैं, बस उतनी दुनिया उनको उसके बाहर की दुनिया ही नहीं नजर आ रही है। अरे आप 200 एकड़ के घरों में रह रही है पटौदी खानदान में, सारी दुनिया पटौदी खानदान में नहीं रह रही है। और ये तो बोलेंगे सर, और करीना कपूर जरूर बोलेंगी सर, क्यों? क्योंकि उनको पता है इनका अब खत्म हो चुका है। 41 की एज में वो 14 इयर्स जैसी बातें करके भी अब कुछ नहीं होने वाला। इनको मालूम है कि इनकी स्टोरी एंड हो चुकी है, तो ये सोचा मेरे को क्या करना है ना, बाकी बॉलीवुड जाने, क्योंकि सेल्फिश है ना, इनको क्या फर्क पड़ता है इनके बाकी लोग कमाए या ना कमाए, मेरा कमाई हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे कौन सी मूवी मिलने वाली है, कुछ भी बोलो यार, हम तो पटौदियों के हैं। तो ये है सर चक्कर। और ये तापसी पन्नू जो अभी आपने एक और एग्जांपल लिया, उनका क्या दिमाग फिर गया वो तो भगवान ही जाने। मतलब ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए ना बहुत बड़ा वाला मेडिसिन चाहिए। उस पर हम लोग कल सिर्फ इनका ही नहीं, आमिर खान, और आमिर खान की जो अपोलॉजी, अगर सब कह रहे हैं ना नहीं आमिर खान ने अपने देखो आके माफी मांगी, लोगों से माफी मांगी, कोई मधुवन, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना रिलीजन और ये वो, अभी मधु ने एक तरफ आमिर खान को धोया
खान को धोया और पीछे से अक्षय कुमार को भी धो डाला। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। ये बॉलीवुड को धो रही है पब्लिक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खान है, वो हिंदू है, मुसलमान है, वो सिख है, ईसाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो बॉलीवुड से है, वो एक्टर है, उसने सुशांत के फेवर में नहीं बोला, पब्लिक ने धो डाला। फिल्में नहीं चल रही क्योंकि आपने सुशांत का साथ नहीं दिया, पब्लिक के साथ नहीं दिया, पब्लिक आपके साथ। दिस इज द स्टोरी। यस मधु, वो है। सर आपने तो मुझे रोक दिया, मैं भूल गई क्या बोले मधु। मैं भूल गई, लेकिन मैं बोलती हूँ सर। देखिए आपको मैं बता रही हूँ ना, सबका सबका ले, मैं क्या बोल रही थी मैं भूल गई। मैं क्या आप बोलो फिर मैं बोलूंगी। मधु को रोक दिया, गलती कर दिया। ओके सॉरी मधु, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट स्टॉप यू। यस मेगा 1 सेकंड, गलती हो गई है, मैंने रोक दिया मधु को। मधु पॉइंट भूल गई। यस मेगा प्लीज गो अहेड। सर अभी आपने एक पॉइंट बोला ना कि ये लोग, उनका बजट अब हिल गया है, अभी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। तो आपको याद होगा कि सुशांत जी बोला था कि अगर मैं मूवीज में कुछ नहीं कर पाया तो मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। मतलब I'll do something for myself. Either I'll make a documentary or I'll go somewhere. But because of obviously he's very intelligent, he was very intelligent. तो अब वही देखो, इनका भी हाल होने वाला है। तो बड़ा मजा आ रहा है सर देख के। You are right. अच्छा मैं बताता हूँ, गुड पॉइंट दैट यू रेज्ड मेघा। सुशांत ने बोला था कि भाई मेरे को ओटीटी पे नहीं जाना है, राइट? मेरी फिल्म ओटीटी पे रिलीज मत करो। इन्होंने जबरदस्ती उसको धक्के मार के उसकी फिल्म को ओटीटी पे रिलीज कर दिया। आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री ओटीटी पे है ना। सुशांत ने कहा देखो मुझे रोकोगे तो मैं, ऐसा है कि यूट्यूब पे फिल्म दिखाने लगूंगा, मैं एक कैमरा लगा के बैठ जाऊंगा और यूट्यूब पे करूंगा, नहीं तो मैं ओटीटी पे चला जाऊंगा, नहीं तो मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। आज इंडस्ट्री डॉक्यूमेंट्री बना रही है 5 करोड़ में और आपको बोल रही है कि फिल्म है। एक फिल्म बता रहा हूं, जानवी कपूर जेन नेक्स्ट की लीडिंग एक्ट्रेस है ना। जानवी कपूर जेन नेक्स्ट की लीडिंग एक्ट्रेस। तो अब जो जनरेशन चल रहा है उसके बाद वाले जनरेशन पे आए तो उनमें सारा अली खान, जानवी कपूर, ये लोग लीडिंग एक्ट्रेस है ना। तो जानवी कपूर की एक फिल्म आई है, क्या नाम है मेघा उसकी? अभी जो सर नाम नहीं पता, मैं तो ट्रेलर भी नहीं देखी। हैप्पी समथिंग, है ना, हैप्पी, आई डोंट रिमेंबर समथिंग। वो आपको मालूम है कि वो फिल्म में कैसे बनी है? उस फिल्म में एक गांव का एक खेत है, उसमें एक कमरा है, तो एक लोकेशन गांव के खेत का वो कमरा, ठीक है, वो भी टिन शेड कमरा। तो उसमें कितना खर्चा होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। एक वो पंजाब ट्रांसपोर्ट का बस, ठीक है, 4 पुलिस वाले एक्स्ट्रा स्टार्स है ना, छोटे स्टार्स को पुलिस वाले बना दिया। और उसके बाद एक छोटा सा घर जिसमें एक छोटा सा बाथरूम, ओके, और एक पब्लिक टॉयलेट। ये है 4 लोकेशंस। एक छोटा घर जो बहुत बुरे हाल में है, उसमें एक बाथरूम, एक पब्लिक बाथरूम जिसमें 4 टॉयलेट्स है ना, जिसमें से बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, जो भी आ रही है, वही गई थी चेक कर। और उसके बाद एक बस और एक वो खेत। और इस 4 लोकेशन पे इन्होंने फिल्म बना डाली। 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ में ज्यादा, 2 करोड़ से ज्यादा खर्चा नहीं हुआ होगा। 2 करोड़ में इन्होंने फिल्म बना दी। किसकी? जानवी कपूर की। पहले के टाइम में वही जानवी कपूर की फिल्म आ रही होती तो शूट कहां हो रहा था? स्विट्जरलैंड, इन अ शिफॉन साड़ी, राइट? कहां गया शिफॉन साड़ी? कहां गया वो स्विट्जरलैंड? कहां गया वो लंदन? कहां गया यूएस? जानवी कपूर की जगह पर किसी अच्छे, कहां गई शिमला? जानवी कपूर की जगह किसी अच्छे एक्टर को ले लेते तो ये मूवी भी चल जाती। मैं आपको बता रही हूँ, कश्मीर। जानवी कपूर की जगह किसी अच्छे एक्ट्रेस को ले लेते तो ये मूवी चल जाती। नहीं एक मिनट, मैं आई एम नॉट ऑन दैट। मैं कह रहा हूँ कि ये लोग आउटडोर लोकेशन के लिए अब शिमला भी नहीं ले जा रहे, कश्मीर भी नहीं ले जा रहे, खर्चा हो जाएगा। कहीं पब्लिक ने नहीं देखा तो पैसे भी नहीं लौटेंगे। इन्होंने 2 करोड़ में बनाई और हॉटस्टार को 15 करोड़ में बेच दी, है ना। इनके पास 13 करोड़ आ गए। अब ये बोले हमारी फिल्म हिट हो गई। कैसे? हमने 2 करोड़ में बनाई, हमें 15 करोड़ आ गए। अरे भैया 15 करोड़ में तो चिनिया बादाम खाते थे पहले, है ना, मूंगफली। अब 15 करोड़ में आपकी इनकम हो रही है। ये इंडस्ट्री का जो हाल है ना, अभी जस्ट वेट, अभी ये शुरुआत है, आगे एक्चुअली सच्चाई यही है। वो हमारे बिकॉज ऑफ
क्योंकि सब लोग देखते थे एंड देन वो अपने वो बढ़ा लेते थे बजट और फिर 100 करोड़ ले रहे मूवी का एंड देन दे आर लिविंग अ लैविश लाइफ। हम क्यों ना जिए लैविश लाइफ, हम क्यों पैसे दे अपने उनको, हम सेव करेंगे और हम अच्छी लाइफ जिएंगे rather than giving a money। तो मैं सारे सबको यही बोलना चाहती हूँ कि अपने लिए पैसे बचाओ, अच्छे कंटेंट देखो, ऐसे सारे कंटेंट देखने की जरूरत नहीं है। सेव मनी फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली और डोनेशन करो, प्लीज गिव सम डोनेशन। Yes, yes, Payal. Yes, Payal, please go ahead. Payal, बोलिए. सर बोलिए. ये लोग जो गांव और घर का मिल रहा है ना शूटिंग के टाइम पर, देखिए कुछ दिन बाद ये भी ना मिले, क्योंकि पता चला कि पब्लिक उनके पीछे पड़े हैं कि यहाँ शूटिंग मत करो, हम लोगों को तुम्हारा शूटिंग भी नहीं देखना है। तो अब ये दिन भी आ जाएगा बहुत दिन के बाद, क्योंकि बॉलीवुड का जो हाल चल रहा है, पब्लिक इस तरह से बौखला हुए है ना इन लोगों के पीछे कि उन लोगों को शूटिंग की जगह भी तक नहीं मिलेगा। जैसे सुशांत को वो लोग बॉयकॉट किए ना, पता लगा बोला पंजाब में शूटिंग नहीं मिलेगा। नहीं बोला पंजाब में शूटिंग नहीं हो सकती। नहीं, पंजाब में नहीं, बिहार में नहीं। बिहार तो सुशांत करते हैं, बिहार में भी नहीं कर सकते हो। हम लोग तो कश्मीर हम लोग तो बंगाल में घुसने ही नहीं देंगे, बिल्कुल एंट्री हम लोग नहीं तो है। बंगाल में घुसने ही नहीं देंगे। और नहीं, बंगाल में तो दीदी का परमिशन लेना पड़ेगा, है ना। अभी दीदी सोचेगी ये पहले पता करो कि बीजेपी का आदमी है कि ये तृणमूल का आदमी है। अगर तृणमूल का आदमी है तो पूरा परमिशन मिलेगा, चाहे पायल को पसंद आए या ना पसंद आए। अगर बीजेपी का आदमी है कोई परमिशन मिलवे ना, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ चोलबे ना, है ना, करके उसको टाटा में साउथ इंडिया में जाएंगे कैसे? तो साउथ इंडिया में तो ऑलरेडी फिल्म बन रही है। और नहीं सर, हम लोग के रीजन में फिल्म बनाएंगे, बॉलीवुड को जगह क्यों देंगे? और सर आज मुझे याद आ रहा है, आप एक शो किए थे जिसमें 25 मूवीज के आपने नाम बोले थे, तो हम भी बोले थे कि आप बोले थे कि देखते हैं कि कितना हिट होगा। तो हम बोले इसमें एक भी हिट हो जाए तो हम मान लेंगे। तो अब देख रहे हैं कि हिट थोड़ा तो बहुत दूर की बात है, अपना पैसे ले ले। यू आर राइट। अगर मैं उस 25 के लिस्ट को निकालूंगा तो 25 की लिस्ट में केवल 2 फिल्म वही तो। अब अगर नहीं 2 नहीं, एक, केवल एक, क्योंकि वो द कश्मीर फाइल्स उस लिस्ट में नहीं, उसमें नहीं है। तो हम वही बोल रहे हैं कि बॉलीवुड कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक सुशांत सिंह राजपूत के वजह से इनकी हालत इतने बद से बदतर हो जाएगी। सपने में भी नहीं सोचे हैं। ये लोग भी अब नाइटमेयर में है, ट्रॉमा में है। ये लोग कभी सुशांत के नाम नहीं लेंगे, कभी ये नहीं बोलेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत नाम के कोई इंडस्ट्री में बिलोंग करता था जो इतनी बड़ी बिग हिट दिया था, क्योंकि वो लोग डर गए हैं, बहुत बुरी तरह से डर गए हैं आम पब्लिक की इस तरह से बॉयकॉट से। हम तो देखे ही नहीं है 2 साल से मूवी, ना हम देखे ना फैमिली में किसी को देखने दिए, ना आगे किसी को देंगे। तो हमारे इंडस्ट्री मतलब जो फैमिली में किसी को मैं नहीं देखने दूंगी। जैसे ऐसे ही शायद हर कोई बॉयकॉट कर रहे हैं। तो सुशांत एक ऐसा नाम है, ऐसा हो रहा है जो बॉलीवुड को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देगा। जो चल रहा है अब आगे 1 साल में वो भी खत्म हो जाएगा। एंड थैंक यू सर, और आज का सेशन के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत दिन बाद आपने प्लेटफॉर्म ओपन किए हैं, थैंक यू सो मच। बॉलीवुड के लिए इतना कुछ बोलने के लिए थैंक्स मधु, मेघा, सबके लिए बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच सर। Stay on. One second. Okay. मधु will say something, फिर से तुमको कुछ बोलना पड़ जाएगा। हाँ सर, पायल मधु प्लीज गो अहेड। सर पायल ने भी बोला ना कि एक ये चेन रिएक्शन होता है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, बिल्कुल सही बोल रही है। देखिए होता क्या था ना कि एक डाई हार्ड फैंस होते हैं जो मूवी देखते हैं, ठीक है। अब वो मूवी देख के जब निकलते हैं ना तो वो अपने आसपास के, जैसे हम जैसे लोग जो ठीक है बहुत अच्छी मूवी है तो चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। फिर उनको आगे बोलते हैं अरे और इतनी अच्छी मूवी, तो हम सोचेंगे हो। फिर कोई हमसे पूछेगा ये मूवी देखी, तो हम क्या बोलेंगे नहीं देखी, नहीं हमको भी जाना है, तो हम जाते हैं। फिर हम अपने साथ चार चंगू मंगू को और लेके जाते हैं, यार अकेले कैसे जाना है, चल तू भी चल। फिर वो 4, तो अब क्या हो रहा है ना, इस तरीके से चलती है, मतलब मूवीज भी जो चलती है ना इस तरह से कि ऐसे एक दूसरे को वर्बल बोल करके। अभी क्या हो गया है ना, तुम ये मूवी देखने गई थी, हाउ डेयर यू, कैसे चले गए तुम मूवी देखने, अब मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। तो वो डर से बोल रहे कि अच्छा यार ये कहीं मुझे ये ना बोले कि है ना कि अरे यार मैं मूवी देखने गई। अब मूवी देख, पहले मूवी देख के आते थे ना बड़े प्राउड से, हमने ये मूवी देखी, फेसबुक पे इधर उधर हमने ये मूवी, अब डर के उधर छुप के देख के भी आ रहा है, नहीं मैंने नहीं देखी। ऐसा हो गया है सर, ये ऐसा हो गया है, ठीक है। He is right.
अगर कोई फिल्म देख भी रहा है तो बोल नहीं रहा है कि फिल्म देखी है, क्यों? कहीं पता लगा खुद ही पिटाई डलने लगे। अच्छा सर, आपने फिल्म देखी है, आप बॉलीवुड को प्रमोट कर रहे हो, अब इस डर से अगर मैं देख भी रहा हूँ ना तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो फिल्म देखा ही नहीं हूँ, क्यों? क्यों मेरे को मरना है, पब्लिक मेरी बैंड बजा देगी। अच्छा, खुद तो सारी फिल्में देख रहे हैं और दूसरों को बोल रहे हैं फिल्म बॉयकॉट कर लेकर सेशन कर रहे हैं। अरे भाई, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे फिल्में देखनी पड़ती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आपने ये फिल्म क्यों देखी? अरे अगर मैं देखूंगा नहीं तो शो कैसे करूंगा? तो अगर मैं पानी में रह के दोस्ती कर लूंगा पानी से तो फिर काम कैसे होगा मेरा? तो यस, मधु इज राइट, बट लोग देख भी रहे हैं ना। जैसे पायल ने कोई फिल्म देखी भी होगी, चुपचाप बताएगी नहीं, क्यों? पता लगा बोल देगी ये एंटी एसएसआर कैंपेन है ना। तो इसी तरह मेघा ने कोई फिल्म देखी होगी तो बताएगी नहीं। मधु यू आर राइट, प्लीज गो अहेड। टोकूंगा नहीं तो मधु फिर भूल जाएगी। यस गो अहेड। मेरे को जल्दी जल्दी बोलने दिया। और दूसरी बात सर, अगर आज मैं पायल या मेघा मस्त मेकअप लगा के फिल्टर लगा करके हम अरिजीत सिंह के सॉन्ग पे अगर अभी गाना गा लेना, एक मतलब लिपसिंग कर दें, तो हम भी हीरोइन लगने लग जाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि हर घर का एक बच्चा तो हीरोइन बनकर के आ ही जा रहा है कि नहीं? बता दो, गलत हुई तो मैं बता दो। तो हम क्यों देखेंगे करीना कपूर की एक ही शक्ल को 50 साल तक? नहीं देखेंगे ना। हम तो वो रील्स, मैं रील्स देखती हूँ, मैं जब भी टाइम पास करना था ना रील्स, तो उसमें है ना वो ओरियो बिस्किट का रैपर खुलता हुआ भी मैं देख लेती हूँ, लेकिन अगर इनके चेहरे आ गए ना तो मैं स्किप कर जाती हूँ। भागो भागो, इसको नहीं, मतलब मैं वो देख सकती हूँ, ये नहीं। तो सर ये बात है। दूसरी बात, और सर एक और मुझे बात कहनी है कि आमिर खान को बोल रहे ना, अरे अरे देखो देखो, उन्होंने तो है ना आकर के है ना माफी मांगी। क्या माफी मांगी? माफी मांगने का स्टाइल देखा है? उनके सेंटेंस को जरा ढंग से पढ़िए, जरा ढंग से पढ़िए। वो किस तरीके का मतलब वो है, जैसे नहीं होता कि यार एकदम फॉर्मेलिटी कर दो यार, मतलब जबरदस्ती का 4 लाइन मुझे लिखना है। कौन सा लिख करके जय हिंद बोल दिया या इंडिया का फ्लैग लगा दिया, या कौन सा ऐसा उन्होंने पेट्रियोटिक एक भी लाइन बोल दी, या ऐसा कौन सा दिल से लग रहा है? वो बिल्कुल दिल से बोली हुई लाइनें नहीं है जो उन्होंने बोली भी है ना। मतलब मुझे लग रहा है उनके प्रोड्यूसर ने मार मार के उनको बोला होगा कि तुमको बोलना पड़ेगा। प्रोड्यूसर है, अरे वो खुद ही प्रोड्यूसर, पैसे लगे भाई। अच्छा, तो फिर किसी ने बोल दिया होगा कि है ना कि जाकर के बोलो नहीं तो लुटिया डूब जाएगी, तो आगे चलो यार, क्योंकि तो हिट के लिए कुछ भी करेगा। मैंने पूरा शो में बताया था, उनकी मजबूरी थी बोलना, नहीं तो फिल्म तो ऐसे पिट रही और भी पिट रही होती। हाँ, बहुत सही बोला आपने, क्योंकि पैसा इनका लगा हो, तभी मैं सोचूं यानी पैसा इनका लगा है, इसलिए आगे उन्होंने 4 लाइन बोल भी दी। लेकिन करीना कपूर जी का पैसा नहीं लगा है, सिर्फ टाइम लगा है, और वो भी पैसे ले लिए उन्होंने, तो आकर के उन्होंने दूसरी लाइन बोल दी। हाँ, तो उन्होंने बोला ना, करीना ने बोला कि मेरे लिए तो मैंने फिल्म कर दी, फिल्म हो गई, उसके बाद चले न चले कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये समझिए कि बॉलीवुड में आपस में यूनिटी कितनी है। ये इनमें यूनिटी नहीं है, लेकिन इनको पता नहीं है कि हम जो इतने करोड़ की जनसंख्या के लोग हैं ना, हम में उनसे ज्यादा यूनिटी है। हम एक सिटी, पहले एक स्टेट वाइज डिवाइडेड थे। यहाँ गुवाहाटी में बैठा हुआ इंसान, कश्मीर में बैठे हुए इंसान, और साउथ में बैठे के इंसान, और यहाँ मुंबई में बैठे इंसान के साथ हमारी मैच कर रहे हैं मेंटालिटी। लेकिन ये मुंबई में बैठ करके इन लोगों की मेंटालिटी मैच नहीं करती है। एक ही मूवी को प्रमोट करने के लिए आमिर खान कुछ और बोल रहे हैं, करीना कपूर कुछ और बोल रही है, तो सर इनके आपस में भी नहीं बनती है। बात ये है, तो इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका काम खत्म, क्योंकि इनके अंदर खुद की यूनिटी नहीं है। यहाँ में भी अब बंद हो गया, ये पहले से भी नहीं था, अब दिखने लग गया कि यहाँ भी कुछ नहीं है। तो सर इनकी कहानी ओवर, मतलब इनकी स्टोरी ओवर हो चुकी है। हाँ, और ये साथ में ना साउथ इंडियन को भी लेके डूबेंगे। क्यों साउथ को लेके डूबने वाले हैं? क्योंकि ये वहां से भी उठा के लोगों को अपनी मूवी में डाल रहे हैं। चलो कोई पॉइंट छोड़ो मत, दूसरे दिन के लिए सारा आज ही बोलते हो कि पता नहीं है दोबारा मौका कब मिलने वाला है ना। ऐसा नहीं है, we will be doing the speak up Q&A more frequently. आ गई, public is waiting to talk, so I will do the shows more often. Please do keep coming. ऐसा ना हो कि पता लगा प्लेटफॉर्म खोल दिया और 2 ही लोग आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। So all of you can come and join and we can open the platform. Yes Madhu, please carry on. सर मेघा नहीं आती है, इन लोगों को बोलिए। हम लोग तो सर बैठे ही रहते हैं, मैं पायल हम लोग तो बैठे रहते हैं कि कब ओपन हो, और हम लोग दौड़ के चले आए। आपका नरेशन सुनने के बाद से इतना जोश आता है ना कि चुप नहीं रह सकते। मतलब डर लगता है कि नहीं बोले यार, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन फिर भी हम चुप नहीं रह सकते। सर कैसे गलत होता हुआ देख के कोई चुप रह सकता है? कैसे? अरे ये मेगा टेल मी वन थिंग, ये मुझे समझ में नहीं आ रही। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ये वीडियो के व्यूज क्यों नहीं आते, ये बताओ मुझे। पता नहीं, मैं तो अपने सारे वीडियो को चाहे मैं बाद में देखूं, मैं तो लाइक जरूर करती हूँ। मैं तुम्हारी बाद में देख के जरूर एक बार। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई सब लोग देख रहे हैं। हाँ जी, इससे पूछता हूँ, वही देख रहा है, हाँ। फिर व्यूज क्यों नहीं आते? सर 3 रीजन। पहला रीजन है कि मुझे तो लगता है कि आप ब्लॉक्ड हुए हैं।
क्योंकि जब बहुत पहले जो एसएसआरियंस के लिए लोग बोलते थे ना, उनके उनके पिक्चर शेयर करते थे, मैं देखती थी सारे यूट्यूबर्स सब लोगों के पिक्चर्स होते थे, और सबसे ज्यादा जो आप बोलते थे आपके पिक्चर वहां पे नहीं होती थी, तभी मुझे शक था कि शायद कुछ गड़बड़ है। और दूसरा रीजन है सर कि लोगों को है ना, मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड और फॉर्मल वे शायद अब पसंद नहीं आता उनको, थोड़ा मिर्च मसाला, कुछ कुछ झूठी झूठी बात भी अगर थोड़ा थोड़ा टच देते हैं ना, तो वो ज्यादा अच्छे से चलता है। और तो मतलब मतलब क्या करें, क्या करें हम? नहीं सर, ऐसे ही ठीक है, हम जैसे लोगों के लिए ऐसा ही प्लेटफॉर्म ठीक है। हम वैसे मिर्च मसाला वाले मूवी नहीं देखते तो प्लेटफॉर्म पे कैसे जाएंगे? तो मतलब हम लोगों के प्रेजेंटेशन बदल ले, मतलब कल से ट्राउजर और शर्ट पहनने के लिए धोती में कुर्ता में आना शुरू कर दूं? सर फिर हमारे व्यूज नहीं आएंगे। नहीं सर, मतलब एक मैंने वीडियो देखा था, मैंने एक वीडियो देखा था, एक देयर इज अ गर्ल हु स्टेज इन न्यूयॉर्क, ओके, उसका वीडियो था, यू नो, कि हमको व्हेनेवर आई मीट समबडी ना, पीपल आस्क आर यू बिहारी, यू डोंट लुक लाइक बिहारी, है ना। तो उसने उस वीडियो में बताया था, मतलब कैसे समझोगे कि हम बिहारी हैं, यहाँ बड़ा बड़ा लिखे कि हम बिहारी हैं, मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट बिहारी टू बी? द बिहारी शुड नॉट नो इंग्लिश, बिहारी शुड नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, बिहारी शुड नॉट बी सोफिस्टिकेटेड, बिहारी शुड नॉट बी एजुकेटेड। तो ये बड़ा मुश्किल हो गया कि यूट्यूब पे आने के लिए आपको सारे, मतलब आपको आते ही बोलना पड़ेगा कि भैया पहले आप पहले मेरा सब्सक्राइब करो, आपने किया कि नहीं किया तो दोबारा करो, इस वीडियो को देखो, लाइक करो और 4 बार लाइक करो, उसके बाद जब 60 सेकंड तो इसमें निकल जाएंगे, फिर 2 मिनट का ऐसे ही न्यूज दे दूंगा कुछ भी, उसके बाद फिर 1 मिनट लूंगा, आपने वीडियो लाइक किया कि नहीं, वही लोगों को आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोबारा आइए और मेरे वीडियो को देखिए। क्या चीज देखने के लिए आई है? खोदा पहाड़ और निकली चुईया। और क्योंकि वो कंटेंट देने के लिए फिर 4 वीडियोस बन जाएंगी ना, तो आपके 4 वीडियोस के व्यूज आ गए, राइट? आधा टाइम तो इसी को बोलने में लगा दिया, तो ऐसे 50 वीडियो बन जाएंगे एक शो से, 50। एग्जैक्टली, या एनीवे, बट सर वही, वो हमारी जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है सर, उनको फिर वो पसंद नहीं आएगा, बिकॉज वी लाइक द वे यू आर डूइंग योर शोज। पर्सनली मैं सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म में आती हूँ, मुझे न्यूज सुननी होती है या सुशांत से रिलेटेड या वैसे कोई न्यूज, आई विल सी योर डोंट वरी, वी विल कंटिन्यू द वे वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर स्टाइल, अल्टीमेटली we will remain a brand, and finally only we will survive, so don't worry, ultimately it will be ignore you. The end of the day you will win, yes, end of the day only we will survive, because we are choosing the right path, we are not doing anything nonsense anywhere, hum faltu ka, and I want to add, and I want to add before I go that वो माफी भी मांग ले तब भी प्लीज गो फॉर अ गुड कंटेंट, ऐसे नहीं कि बॉलीवुड हाई से माफी मांगी तो चलो अब बॉयकॉट करना छोड़ देते हैं, प्लीज गाइस। अपना जैसे आपका लॉजिक और बात चल रहा है, कीप गोइंग एंड सी अ गुड कंटेंट एंड सपोर्ट अ राइट पर्सन, व्हाटएवर बी द बी बॉलीवुड, स्पोर्ट्स, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जस्ट सपोर्ट द राइट पीपल। Okay, thanks, Megha. Okay, bye. Thank you, sir. Thanks, Madhu. Bye. Yes, Madhu, yes, go ahead. Please conclude. सर कंक्लूड क्या करना है? कंक्लूड तो इन्होंने अपना खुद ही कर लिया, इन्होंने अपना खुद का कंक्लूजन निकाल लिया। इनका जो कहते हैं ना, इनकी स्टोरी का डे एंड हो गया है। अब मुझे नहीं मालूम ये किस सर्वाइव करना मुश्किल है सर, पता है क्यों सर्वाइव करना मुश्किल है? अभी भी ये दिमाग और दिल दोनों से ही काम नहीं कर रहे हैं, ना इनका दिल काम कर रहा है, ना इनका दिमाग काम कर रहा है। दिल काम करने का मतलब ये है कि ना अभी भी ये झुकने को तैयार नहीं है, मतलब अभी भी ये झुकने को तैयार नहीं है, और दिमाग से इनका बहुत ज्यादा दिमाग पैदल हो चुका है, दिमाग काम कर नहीं रहा है। इनको लग रहा है, जैसे बता रही हूँ इनके क्या दिमाग में चल रहा है ना, अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे अभी मैंने अभी रिसेंट एक KFC का एड देखा, वो एड कौन कर रहा है? करण जौहर, है ना। हर एड में ये घुस चुके हैं। KFC ऑलरेडी इतना बड़ा ब्रांड है, ऑलरेडी इतना चलता है। करण जौहर ऐड कर रहे हैं, करण जौहर ऐड कर रहे हैं, मतलब मैंने अभी देखा, 2-3 दिन पहले मैंने देखा करण जौहर के ऐड करने से KFC चल रहा है क्या? उसको बिजनेस बंद कराना है? नहीं, ये लोग क्या सोच रहे हैं सर कि तुम करो क्या चीज को बॉयकॉट करोगे, आप समझ रहे हैं? अब जैसे मेरे बच्चे हैं वो KFC, तो मैं कैसे बॉयकॉट कर लूंगी, मेरे बच्चे हैं। अब वो करण जौहर आके अब KFC खा रहा है,
तो उनका इन लोगों का क्या चल रहा है ना सर, ये मतलब केएफसी को पूरे देश में और कोई नहीं मिला ऐड कराने के लिए। नहीं सर, ये स्ट्रैटेजी है, आप समझिए, ये बॉलीवुड वर्सेस ऑडियंस है, बॉलीवुड वर्सेस इंडिया है। मुझे तो ये लगता है बॉलीवुड वर्सेस इंडिया। बॉलीवुड ये कहने में लगा कि देखते बेटा तुम क्या क्या बॉयकॉट करोगे। केएफसी के एंड में एड में करण जौहर कैसे आ गया भाई? वो तो केएफसी तो कभी किसी फेस को वैल्यू देता नहीं है ना, फेस वैल्यू उसमें तो होती नहीं है। करण जौहर ऐड करा, क्यों? फ्लिपकार्ट को ये जो भी एक्ट्रेस वगैरह ऐड कर रही है, क्यों? क्या जरूरत है इनको ऐड करने की? जरूरत नहीं है, वहां पे भी ऐड में ये आ रहे हैं। इसका मतलब सर इनकी स्ट्रेटेजी प्लानिंग या जो भी है, इन्होंने कुछ और प्लानिंग से ही चल रहे हैं, मतलब इन्होंने कुछ तो सोचा हुआ है, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रही है कि तुम सुनामी से लड़ोगे, इतने करोड़ हम हैं, इनसे तुम कैसे लड़ोगे भाई? हमें समझ नहीं आ रहा। या तो ये कुछ गेम प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान जाने, लेकिन ये बात बिल्कुल है कि ये अपने ना ईगो से लड़ रहे हैं, ईगो से चल रहे हैं, और ये जब तक ईगो से चलेंगे ना सर, इनका कुछ नहीं होगा। तो मेरा तो ये हालांकि छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन अगर कोई सजेशन अगर आम जनता से लेना चाहे तो एज आम जनता में ये कहूंगी, अपना दिल और दिमाग दोनों को यूज करिए अगर बचे रहना है। नहीं तो ठीक है, टाटा बाय बाय। Okay, all right. Thanks Madhu. Thanks a lot for connecting. Thanks a lot. Thank you so much. Good night. So that's all that we have on the show tonight. I hope that all of you enjoyed the discussion, especially during the Q&A, because this is something which we were doing after a long time. A lot of people were writing to me, why are we not opening the platform? We'll be opening the platform more often, provided we have the right topic. But one thing which is very important is कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये boycott, ये लाल सिंह चड्ढा, ये रक्षाबंधन से इस इंडस्ट्री का कुछ भी बदल गया है, इनका सोचने का तरीका बदल गया है, तो ये बिल्कुल नहीं। ये जैसा सोच रहे थे कल, आज भी वैसा ही सोच रहे हैं। ये फिल्म फ्लॉप हो गई दोनों, या हो जाएगी, ये अपनी जगह, लेकिन जो एरोगेंस continues, how and why, wait for my show tomorrow. We'll talk about the Bollywood's continuing arrogance and the reason why they don't believe that there's anybody bigger than the star themselves. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe, come back tomorrow. We'll be talking about something more relevant and more interesting and something that bothers you or affects you. Thanks. Good night.